Hello everyone, welcome to online classes for class 12. Myself Somnath sir, and today is my second lecture for the topic capacitor. So we start with arrangement of capacitor. So first the series arrangement. We know for series arrangement, suppose we have three capacitors C1, C2, C3 connected in series with a battery of V voltage, and if Q is the amount of charge supplied by the battery. एक बात देखो, if we connect this one is positive and this one is negative, then the amount of charge supplied by the battery is equal to the amount of charge received by the battery. So what happened? Let the voltage of this one is V1, let the voltage of this one is V2, and let the voltage of this one is V3. So in series connection what happened? Ki same charge passes through all the capacitor. That is the first thing. So that means the total voltage supply by the battery is equal to the sum of the individual voltage. So what we can write, V is equals to V1 plus V2 plus V3. We know Q equals to CV. So V equals to Q by C. Q equals to CV. So V equals to Q by C. Let C equivalent is the equivalent capacitance of the combination. Here we can suppose that C equivalent is C series because it's a series connection. So same charge flow CS for the series arrangement, that is equals to Q by C1, Q by C2, Q by C3. So 1 by CS, that is equals to 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3. So that means in series connection 1 by CS is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. क्लास 10 में हम लोग रेजिस्टेंस में देखा था, सीरीज में R सीरीज इज R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में 1 बाई R इक्वल्स 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट डॉट डॉट. सो यहाँ पे उसका ठीक उल्टा होगा. रेजिस्टेंस का पैरेलल, यहाँ का सीरीज, रेजिस्टेंस का सीरीज, कैपेसिटर का पैरेलल. फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर 1 by CS is 1 by C1, 1 by C2 dot 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 1 by CN. यहाँ पे हम लोग एक और बात ऐड कर सकता है कि if C1 is equals to C2 equals to C3 is dot 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 equals to CN is equals to C, तो then 1 by CS is 1 by C, 1 by C dot 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 1 by C, that is up to n. You can write up to n, up to n. So n by C, which means CS is C by n. मतलब अगर मेरे पास तीन कैपेसिटर है, each resistance 10 ohm connected in series, then the equivalent is, तुम लोग डायरेक्टली 10 by 3 लिख सकते हो. मतलब अगर सेम रेजिस्टेंस है, सीरीज में है, जितना सारा होगा डिवाइडेड बाई उतना सारा. So this is the series arrangement. Now let's see about parallel arrangement. What happened in parallel arrangement? What happened in parallel arrangement? Now in parallel arrangement what happened? Suppose you have three capacitor connected in parallel. Let it be C1, let it be C2, let it be C3 connected with voltage V. So let Q is the amount of charge supply, Q is the amount of charge received, this one is the plus, this one is the minus. Then let it be Q1, let it be Q2,
let it be Q3. So now what happened that Q charge is distributed in all these three. तो जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो पैरेलल कनेक्शन, जहाँ पे सेम चार्ज जाएगा वो सीरीज कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, वोल्टेज रिमेन सेम. सो टोटल चार्ज इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज, और सीरीज में क्या होगा, टोटल वोल्टेज इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज. पैरेलल में वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट. So total charge is the Q1, Q2, Q3. Let C is the equivalent capacitance of the combination. Here we can suppose P. So here we can suppose P. So Q equals to CV. So C equivalent means CP V, C1 V, C2 V, C3 V. So Cp is C1, C2, C3 for n number of capacitor. Cp is C1, C2 dot Cn. Now if C1 is equals to C2 equals to C3 dot equals to Cn is equals to C, then Cp is C plus C up to N. So we can write NC. मतलब if you have three capacitor connected in parallel, let each value is 10 microfarad, then the equivalent capacitance is 3 into 10, that is 30 microfarad. Okay, now important note. देखो, suppose if we have n number of plate, each plate area A, each separation D, then number of capacitor n-1. I just give you one example, you understand. Suppose मानो मैंने ऐसे करके 5 प्लेट लिया. How many number of plate is there? 1 2 3 4 5. So n is the number of plate, here n is 5. तो number of capacitor कितना होगा, n-1, that means 4. देखो 1 2 3 4. Hope you understand. Now यहाँ पे भी दो तरह का अरेंजमेंट हो सकता है. Let the first one, if we connect in that way up to n, let it be the plus plate, let it be the minus plate. So that means देखो, as this one is plus, that means this one is plus, this one is minus, 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 this one is plus, and this one is minus, and so on. So how many capacitor you have? n-1 number of capacitor. And in series, so what we know in series arrangement, 1 by Cs, that is 1 by C up to n-1. So if we add them n-1 by C, तो Cs कितना हो जाएगा, 1 by n-1 into C. And now we know for each capacitor, as the plate area is A and separation is D, so your capacitance is epsilon naught A by D. We know it from the parallel plate capacitor. So on that basis, what we can say, n-1 into epsilon naught A by D. This is the first part. Now the second part is that if you want to arrange it in the second way, let it look like this. Let it be the positive one, and let this one is the negative one. So again, see what happened, as this one is plus, so this side is plus, this side is
plus, this side is plus, because these all are connected with the plus side, and as this one is connected with the minus side, this one is minus, this one is minus, this one is minus. So this is another way or another type of arrangement. Now this is the parallel connection. You can say how you know that it is a parallel arrangement. So very simple. देखो ये जो प्लस है, ये प्लस सबका प्लस के साथ कनेक्टेड है, तो हम लोगों ने सब प्लस को एक साइड में कर दिया, एंड दिस ऑल आर कनेक्टेड विद द वन पोलैरिटी प्लस. लास्ट वाला में क्या हो रहा था, एक प्लस हो रहा था, एक माइनस हो रहा था, एक प्लस हो रहा था, एक माइनस हो रहा था, मतलब वन बाई वन इट विल बी इंड्यूस. बट हेयर क्या हम लोगों ने किया कि हर सब प्लस को एक साइड में कर दिया. क्यों? देखो सब प्लस कनेक्टेड विद द वन पोलैरिटी प्लस, and all minuses are connected with the another polarity minus. So Hannah, it's a parallel arrangement. So you understand it's a parallel arrangement. So again, as it is a parallel arrangement, CP is C plus C up to n minus 1, because n is the number of plate, so number of capacitor n minus 1. So हम लोग क्या लिखेंगे, n minus 1 C, that is n minus 1 epsilon naught A by D, where epsilon naught A by D is the capacitance of each plate. Okay, so now let's try some numerical on the basis of that series and parallel arrangement, on the basis of some series and parallel arrangement. The question number 1, let the question number 1, this one is given C, suppose C, then suppose C, let this point is A, let this point is B, C. We have to find out the equivalent capacitance of the arrangement. So देखो एक बात ध्यान से सुन लो कि if you have a plain wire, so we can treat them, or we can suppose them as a single point. So that means this is my first point, next is this point. How many capacitor you have? One capacitor. Next point, these all are the same point, let this one. So how many capacitor you have? Two capacitor. How many capacitor you have? Two capacitor. Now this is the same point, these all are the same point, let this one. So how many capacitor you have? Three capacitor. Next, this point, how many capacitor you have? Two capacitor. How many capacitor you have? Two capacitor. And then this one, B. So what about the equivalent? C by 2, sorry, 2C, 3C, 2C, C and B. So now these are in series. So C of AB, 1 by C, 1 by 2C, 1 by 3C, 1 by 2C, 1 by C. So what you have? 6C. So 6 plus 3 plus 2 plus 3 plus 6. तो कितना हो गया? 6 6 18 19 20. 20 by 6C. So C of AB is 6 by 20C. That is 3 by 10C. I think I'm doing right thing. 6 6 3 2 3 6 6 6 12 13 14 15 20 by 6 3 by 10. Yes. So you understand the first question. Now let's try one more question. Let's try one more question. Now the second question is
suppose we have this type of arrangement. This one is one capacitor, this one is one capacitor, this one is one capacitor, and this one is one capacitor. Let that point is X, that point is Y. This one is one capacitor, this one is one capacitor, 2 microfarad, 3 microfarad, 5 microfarad, and let it be 10 microfarad. Now we want to find out the equivalent arrangement of this one. So this one and this one are the 2 points, they are same point. Let this point is C, let this point is D, let this point is E. जो भी नोड है तुम जो भी मन मान सकते हो, हम लोग रैंडमली C D E लिखा है. So we started from X and X is equals to D. X is equals to D. Why? Because they are the same point. मेरा next point क्या है? C, and between X and C you have one capacitor, 2 microfarad, tick. Now C is equals to E. C is equals to E. C is equals to E. And then after E you have Y. Between Y and E you have a capacitor of 10 microfarad. Now see, so we take this one. Now 2 capacitor remain. One is CD, where you have C, this one, where you have D, this. तो देखो C और D के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो. कितना है? 3 माइक्रोफैराड. टिक मारो. D and E, कहाँ पे D है? यहाँ पे. E कहाँ पे है? यहाँ पे. तो एक कैपेसिटर लगा दो, 5 microfarad. So now these 3 capacitors are in parallel with this. This one is series. So क्या लिख सकता है? X. यहाँ पे कितना कैपेसिटर है? 3. 3 2 5 और 5 10. So this one हो गया 10 microfarad और this one हो गया 10 microfarad. This point is Y. So C of XY, which we want to find out, 1 by 10 plus 1 by 10, 2 by 10. So C of XY is 10 by 2, that is 5 microfarad. दो कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड सीरीज में है, तुम सीधा 10 by 2 लिख सकते हो. This is the second question. Now let's try next question. Suppose you have to find out the equivalent capacitance between these 2 points. देखो ये है सपोज A point, ये है B point, C C C C. So how many capacitor you have? 4 capacitor है. So let this one is A, this one is B, this point is D, this point is E, this point is F. So we have to find out the equivalent capacitance between A and B. A किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन B, D, E, F देखो, these all are the plane wire, as they all are the plane wire. So B equals to D equals to E equals to F. Now between A and B you have one capacitor, tick. C. Between A and D you have one more capacitor, tick. Between A and E you have one capacitor, tick. Between A and F you have one more capacitor, tick. So how many capacitor you have? 4. So 4 capacitors are there. So C of AB 4 capacitor, C C C C. So the answer is 4C. This one is your question number 3. एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. देखो, सपोज सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन विथ अ सिंपल डिफरेंस, अ वेरी स्मॉल डिफरेंस. हमने यहाँ पे A पॉइंट रखा, यहाँ पे B पॉइंट रखा, रेस्ट इज एग्जैक्टली सेम एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B. सो सी, एज देयर इज अ गैप बिटवीन A and B, A से हम डायरेक्ट
बी पे नहीं जा सकते, बिकॉज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आइदर यू नीड वायर और यू नीड कैपेसिटर, बिकॉज ये हम जा रहे हैं मतलब चार्ज जाएगा, तो चार्ज जहाँ पे फ्री स्पेस है वहाँ पे जाएगा नहीं, चार्ज को फ्लो होने के लिए यू नीड सम मीडियम। सो ये ए से कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, और कहीं पे भी जाए ये बी पे पहुँच जाएगा। सो हम लोग इसका नंबरिंग क्या कर रहा हूँ, ओ ए बी सी है, लेट इट बी डी, लेट इट बी ई, लेट इट बी एफ। अब मेरा जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, ए से, जाना कहाँ पे है, ओ तक। कैसे जाएंगे, भाया ओ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी स्टार्ट फ्रॉम ए, माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज ओ थ्रू अ कैपेसिटर सी, वी टेक इट। अब ओ से हम कहीं भी जा सकता है, हम लोगों ने डी पे गया, मानो एक कैपेसिटर टिक मारा, अब जहां डी पे गया ऑटोमेटिकली हमें ई एफ बी मिल गया, क्योंकि दिस ऑल आर द सेम पॉइंट, सो वी कैन से इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू डी। अब देखो ओ एंड ई, यू हैव वन मोर कैपेसिटर विच इज लेफ्ट, नाउ यू टिक इट। ओ एंड एफ, एक और कैपेसिटर है, टिक मारो। सो नाउ दिस थ्री आर इन पैरेलल विद दिस इन सीरीज, सो ए, this one is C, this one is 3C, you have B equals to B, दो बार D लिख दिया है। So C of AB सीरीज में 1 by C plus 1 by 3C, that is 3C, 3 plus 1, that is 4 by 3C, तो C of AB is 3 by 4C। अब देखो ज़्यादातर लास्ट में तुम्हें ऐसे करके दो कैपेसिटर सीरीज में मिलेगा, तो इतना बड़ा करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज दो कैपेसिटर है, वन इज C1, वन इज C2, तो C of 1 2 दैट इज C1 प्लस C2, तो दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है, सो वी कैन डायरेक्टली यूज C1 C2 by C1 plus C2, which save your time, like C into 3C by C plus 3C, that is 3 by 4C, so which will save your time. Now एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज this point is A, this point is B, C, 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 C. What you have to find out? We have to find out the equivalent capacitance between A and B. So numbering करो A, B, these are the node. So let it be the center वाला O है, C already है, तो D, E, F, G. अब देखो A, D, A, E, they all are the same point. So we can write A is equals to D is equals to E, next point is O, then my यहाँ से यहाँ आएंगे, next point is F is equals to B is equals to G। अब सिंपल तरीका, काटो घोलो लगाओ। सो घोलो मत करो, यहाँ पे काटो और लगाओ। यहाँ पे देखो O and D, one capacitor you have, so this is the D point, this is the O point, you have one capacitor। C, this is the E point, this is the O point, एक कैपेसिटर मेरे को मिल गया। अब देखो यहाँ पे है O E, यहाँ पे है O E, एक कैपेसिटर, O G एक कैपेसिटर, तो C C। अब देखो D F, यू हैव वन कैपेसिटर, यहाँ पे है D, यहाँ पे है F, तो हम लोग इसको ऐसा लिखा। अब देखो E and G, you have one more capacitor। अब देखो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, तो क्या हो गया C प्लस C 2C। सो हम लोग इसको अगर नेक्स्ट इसका डायग्राम, ये डायग्राम से ये डायग्राम में आया, अब यहाँ से आएगा, देखो A, यहाँ पे है B, तो ये दोनों मिला के हो गया 2C, ये दोनों मिला के हो गया 2C, ऊपर में चला गया C, नीचे में चला गया C।
तो कितना हो गया, ये हो गया ए, ये दोनों को मिला के हो गया 2c सी, ये पॉइंट बी, ये वाला हो गया सी, ये वाला हो गया सी। अब देखो ये 3c पैरेलल में है, सो c प्लस सी दैट इज 3c। हम लोग इसको एक और तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज द वन वे। द सेकेंड मैथड इज, देखो जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मतलब सिमेट्री, देखो ये क्या है, ये जो है इसका सिमेट्री, मतलब यू कैन फोल्ड इट, यहां से जहां से फोल्ड कर सकते हो तुम, वहां से इसको ऐसा सोच सकते हो कि ये जो है ये टच किया है मगर नहीं किया है, मतलब ये ऐसा है। अब बोलोगे ऐसा क्यों हुआ, तो देखो लॉजिक इसका ये है कि if you connected this with a battery, so what happened, this is the charge supply and this is the charge received by the battery। अब ये देखो दो पार्ट में डिवीजन होगा, फिर यहाँ से दो पार्ट इधर गया, फिर यहाँ से दो पार्ट इधर गया। अब यहाँ आने के बाद आप देखो कंफ्यूजन है, ये इधर इधर जाएगा और ये क्या करेगा, इधर इधर जाएगा। अब देखो ये दोनों उल्टा डायरेक्शन हो गया, ये दोनों उल्टा डायरेक्शन हो गया, सो ये कभी उल्टा डायरेक्शन हो गया तो ये दोनों जाके रुक जाएगा, ये दोनों जाके रुक जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या करेगा, ये उल्टा नहीं जाके ये बोलेगा तुम भाई ऐसे जाओ और हम भाई ऐसे जाएंगे। सो अगर ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, देखो ये इधर वाला पूरा चार्ज इधर रह गया, इधर वाला पूरा चार्ज इधर गया, तो ये इधर नहीं आके ये इधर चला जाएगा और ये आया ऐसे गया, ये इधर चला जाएगा। सो क्या हो गया, ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा। लेट्स सी देन व्हाट हैपन। तो सीधा बात है, इतना कुछ दिमाग नहीं लगा के तुम सीधा याद रखना कि अगर मेरा ऐसा होगा, यहाँ से फोल्ड है, जहाँ से फोल्ड है उसको अप एंड डाउन कर दो, मतलब ये ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब देखो ये है ए, ये है बी, ये दोनों सीरीज में हो गया c/2, इसके साथ ये पैरेलल में हो गया, तो c/2 प्लस सी इज 3/2c, तो ऊपर वाला हो गया 3/2c, नीचे वाला भी हो गया 3/2c। नाउ c ऑफ ए बी 3/2c प्लस 3/2c दैट इज 3c। तुम बोलोगे सर ये क्या कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? आई शो यू वन मोर क्वेश्चन सिमिलर टाइप, देन यू अंडरस्टैंड कि ऐसा हो सकता है। देखो सपोज हम लोगों ने कैपेसिटर लिया दिस टाइप का, देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी 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 सी। देखो अगेन इट कैन बी फोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइन। तो मैंने क्या बोला, जहाँ पे फोल्ड हो रहा है तो ये ऑपोजिट नहीं जाएगा, तो क्या होगा, ये बोलेगा तुम ऐसे जाओ, ये बोलेगा तुम ऐसे जाओ, मैं सीधा चला जाऊँगा। सो क्या हुआ, ये दोनों सीरीज़ में हो गया, इसके साथ ये पैरेलल में हो गया, ये दोनों सीरीज़ में हो गया, ये दोनों सीरीज़ में हो गया, इसके साथ पैरेलल हो गया, ये तीनों सीरीज़ हो गया। सो लेट्स ड्रॉ द इक्विवेलेंट डायग्राम ए बी। ये दोनों सीरीज़ में हो गया तो ये हो गया c/2, ये दोनों c/2 प्लस c, तो यहाँ पे एक है c, एक है 3/2c, एक है c। सिमिलरली नीचे वाला c यहाँ पे हो गया 3/2c और ये हो गया c। तो अब देखो कितना आसान हो गया। अब दिस ऑल आर इन सीरीज, सो ये तीनों का ले लो सीरीज, 1/c, ये उल्टा जाएगा तो 2/3c प्लस 1/c, एलसीएम ले लो 3c, तो 3 + 2 + 3, तो 3 3 6 2 8, सो 8/3c, cs कितना हो गया 3/8c। तो इसका मतलब इसका मैं फिर इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूँ। ए, ये बी, ये वाला हो गया c/2, ये वाला हो गया 3/8c, ये वाला हो गया 3/8c, तो c ऑफ ए बी हो गया 3/8c, c/2 3/8c,
8 हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, 3 + 4 + 3 सी, तो 6 6 8 10, 10/8 सी, दैट इज 5/4 सी। समझ में आ रहा है? हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज यहाँ पे एक कैपेसिटर है, 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 और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए। सबको सी मान लेते हैं, जल्दी जल्दी होगा। तो देखो, देख के कितना भयंकर लग रहा है कि क्या मैंने दे दिया है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए एंड बी आर 2 पॉइंट। जितना भी ये जो जॉइंट है इसको बोला जाता है नोड। नोड को मार्किंग करो। सो ए बी सी ऑलरेडी है, तो डी ई एफ जी एच आई जे के एल हो गया। अब हमें ए से मेरा जर्नी शुरू करना है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है, बी। ए से बी मैं जैसे पहुँच सकता हूँ, मेरे पास जो जो आएगा उस हिसाब से जाऊँगा और उसके बाद देखूँगा मेरा कौन कौन छूट गया है। एक्चुअली ए से बी लॉन्गेस्ट पथ में जाओ और बीच में जो जो छूटेगा उसको बाद में हम लोग ले लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। ए से हम लोग आया सबसे पहले डी, और ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर है सी, हमने इसको ले लिया। जब D पे आया, D एंड E आर द सेम पॉइंट, तो हम लोगों ने लिखा D इज इक्वल्स टू E। अब देखो D पे आया मतलब E पे भी आ गया, E से हम लोगों ने चला गया F पॉइंट पे, और यहाँ पे E और F के बीच में एक कैपेसिटर को ले लिया, तो हमने टिक मार दिया। अब देखो F इज इक्वल्स टू G इक्वल्स टू J इक्वल्स टू I इक्वल्स टू H। चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो इसको, J इक्वल्स टू I इक्वल्स टू H, देखने में सुंदर लगेगा। तो मैंने F में पहुंचा मतलब बेसिकली G में भी पहुंच गया। अब मुझे जाना है B तक, तो G और B के बीच में फिर एक कैपेसिटर है, और B में पहुंचा मतलब L में पहुंचा मतलब K पे पहुंच गया। तो मैंने सब पॉइंट ले लिया और मैंने 3 कैपेसिटर को जाते वक्त चूज कर लिया है। तो मेरा बचा बाकी कौन कौन कैपेसिटर, D और H। यहाँ पे है D पॉइंट, यहाँ पे है H पॉइंट, एक कैपेसिटर मैंने लगा दिया, टिक मार भी दिया। अब मेरा है E एंड I। E कहाँ पे है, E है यहाँ पे, I कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मैंने E और I के बीच में भी एक कैपेसिटर को ले लिया, इसको भी मैंने टिक मार दिया। अब मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है J एंड K। J कहाँ पे है, यहाँ पे, K कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मैंने इसको भी ले लिया और टिक मार दिया। तो मेरा टोटल टिक हो गया, मैंने टोटल कैपेसिटर को सिलेक्ट कर लिया है। तो अब मैं वी कैन से A, दिस वन इज C, this one is 3C, this one is 2C, and this point is B. So how many capacitor you have? 3 capacitor you have in series C of AB. तो 1/C, 1/3C, 1/2C। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 6 LCM ले सकता हूँ, 6 + 2 + 3, तो 6 3 9 2 11, 11/6C। So C of AB is 6/11C। तो ये हुआ मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज 6/11C। Okay, so now we can start with more numerical. Let we have 3 capacitor, 5 microfarad, 10 microfarad and 20 microfarad, and this one is connected with a battery of 50 volt. What we have to find out? We have to find out charge through each capacitor.
So obviously these two capacitors are connected in parallel. So 10 plus 20 is 30, and this 5 connected in series. So net equivalent capacitance 1 by Cs 1 by 5 plus 1 by 30. So what we can write, 36 plus 1. So Cs is 30 by 7 microfarad. So as you get the CS equivalent of this overall, that is 30 by 7 microfarad. So how much is the charge supplied by the battery? Very simple. Q equals to CV. So 30 by 7 into 50, that is microcoulomb. 1500 by 7 microcoulomb. Now see what happened. This charge is distributed in two parts. Let it be Q1, let it be Q2, and as the voltages remain constant of that one, so what we can say, Q equals to CV. So as the voltage is constant, you can say Q is directly proportional to C. You can say Q is directly proportional to C, and as Q is directly proportional to C, so that means what happened, Q1 is to Q2, that is this two, C1 is to C2, that is 10 is to 20, that is 1 is to 2. So Q1 is the 1/3 of the total charge, that is 1/3 of the total charge. 1500 by 7, that is 500 by 7 microcoulomb. And what about Q2? Q2 is 2/3 of the total charge, that is 2/3 of 1500 by 7, that is 1000 by 7 microcoulomb, and if you add them you get Q. So this type of question is very, very important. So I can give you one more question, same type. Suppose 3 capacitor is there, this one, this one, and this one. This one is 10 microfarad, this one is 20 microfarad, and this one is 5 microfarad. And suppose the total amount of charge supply is 100 microcoulomb. Question is find the charge through each capacitor. So you can solve it in two processes. One is the charge is distributed on the basis of ratio Q1, Q2, Q3. So what we can say, Q1 is to Q2 is to Q3 is equals to 10 is to 20 is to 5, that is 2 is to 4 is to 1. So what happened? What do you mean by Q1? Q1 is the 2 2 4 के 5 total 7 part. So 2 part of the 7 part of total, that is 2 by 7 of total is 100. So you can write 200 by 7 microcoulomb. Q2 4 by 7 part of the total, so 4 by 7 of the 100, that is 400 by 7 microcoulomb. And Q3, that is 1 by 7 of the total, that is 100 by 7 microcoulomb. And if you add them, what you have, you get the whole value. This one you can say method 1. And method 2, what is the method 2? You can solve it in another method. These 3 capacitors are connected in parallel. So what about the equivalent capacitance? C equivalent is 10 plus 20 plus 5, that is 35 microfarad. So as you know, Q equals to CV. So what is the voltage? Q by C. So 100 by 35 volt is the total voltage. Now as you know the voltage of the individual or overall, so and you know the capacitance of the individual, Q1 is how much? C1V. So C1 is how much? 10 into 100 by 35, that is 1000 by 35. So if you multiply it by, that is microcoulomb, if you cancel, and so you get
200/7 micro. After cancel something means divided, cancel by 5 or multiplied by 5 means 200/7 simply. What about the Q2 C2V? So C2 is 220 into 100/35, so you get 400/7 microcoulomb, and Q3 is C3V, that is 5 into 100/35, that is 100/7 microcoulomb. So I think this one is much easier than this one, but you can solve any one, you can choose any one to solve this. Now the next question is, suppose you have 4 capacitor connected with a battery V, and there is a switch S, C, 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 C. This is A and B. The question is that initially the switch is off. When the switch is on, how much charge supplied by the battery? If you want to write the options are CV/3, option B CV/4, option C CV/6, option D CV/12. So let's check. When the switch is off, so what happened? Charge flow in that manner. So what happened? Equivalent capacitance is C/4. So Q1 is the charge, that is C/4 into V. That is the first part. But when the switch is on, what happened? When this one is on, so charge flow in that manner means no charge flow through this one. So now when the switch is on, the charge store or charge flow, that is C/3V. So now see, this one is the higher charge and this one is the lower charge. तो देखो पहले से ये चार्ज स्टोर था, अब ये चार्ज स्टोर हुआ. मतलब ऐसे करके समझो, तुम्हारा पास पहले से 10 रुपया था, अब 20 रुपया है, या 10 रुपया था, अब 30 रुपया हुआ है. तो कितना रुपया एक्स्ट्रा आया? तो 30 रुपया माइनस 10 रुपया मतलब 20 रुपया. सो पैसा सबको समझ में आता है. सो द डिफरेंस इज Q2 minus Q1, so CV/3 minus CV/4, that is CV/12, 4 minus 3, that is 1/12 CV. So the answer is CV/12. Okay, next one. Suppose this point is A, this point is B. This one is 6 microfarad, 6 microfarad, 6 microfarad, 6 microfarad, 6 microfarad, 6 microfarad. Between this is 3 microfarad. This one is 3 microfarad, and this one is 3 microfarad. But you have to find out the equivalent capacitance between A and B. So it's a very simple. See, these two capacitors are connected in series. तो हमें मालूम है if two capacitors are connected in series, so क्या हो जाएगा? C/2. So 6/2 is 3. अच्छा, तुम्हें पता कैसे चलेगा? If we connected with a battery, तो देखो यहाँ पे ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो ये दोनों में सेम चार्ज गया.
फिर ये इसमें गया, ये दोनों मिला के इसमें गया, फिर ये तीनों और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये दोनों मिला के इसके साथ गया। सो ऐसे करके अगर देखेंगे सो देखो ये दोनों में सेम चार्ज गया है, सो दिस टू आर इन सीरीज, तो 6 6 3। अब इसके साथ ये क्या हो गया पैरेलल में, सो 3 and 3 6, देन 6 and 6 अगेन इन सीरीज, सो क्या हो गया 3, दिस 3 and 3 आर इन पैरेलल, क्या हो गया 6, द होल 6 and 6 आर इन सीरीज, तो क्या हो गया 3, दैट 3 and this 3 आर इन पैरेलल, तो क्या हो गया 6, दैट 6 and 6 आर इन सीरीज, कितना हो गया 3, ये 3 है ये 6 है, दे आर इन पैरेलल। सो C इक्विवेलेंट और C ऑफ AB इज 6 माइक्रोफैरड प्लस 3 माइक्रोफैरड, दैट इज 9 माइक्रोफैरड। So now we start a new topic that is called Wheatstone bridge and also called balanced Wheatstone bridge. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि Wheatstone bridge क्या है और उसके बाद देखेंगे कि इसको बैलेंस्ड कब कहते हैं और बैलेंस्ड Wheatstone bridge में हमें क्या क्या हम लोग इससे कर सकते हैं। So for that Wheatstone bridge you have 4 capacitor, एक रेक्टेंगल और स्क्वायर जैसा दिखने में होगा, ठीक है। लेट इट बी C1, लेट इट बी C2, लेट इट बी C3, लेट इट बी C4, let it be A, B, C and D. So you have 2 diagonal point, one is AB, another one is CD. So याद रखना अगर एक diagonal में any one between these two, अगर examiner ask you कि find out the equivalent capacitance or equivalent capacitance or equivalent resistance and the second diagonal, मतलब ये वाला diagonal में हमें मानो सपोज इक्विवेलेंट निकालना है और जो सेकेंड डायगोनल है इसमें हम लोगों ने एक कैपेसिटर लगाया, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि इसमें निकालने के बोला और ये वाला मेरा यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया है। सो देन इट इज़ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होना चाहिए, टोटल 5 कैपेसिटर होना चाहिए और इसमें जिस डायगोनल में 5th कैपेसिटर होगा उसके ऑपोजिट वाला डायगोनल में यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मुझे इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि कब ये बैलेंस होता है, कैसे ये बैलेंस होता है और बैलेंस होने से क्या होता है। पर सबसे पहले दिस इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज जिसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट किया है। तो जहाँ हम लोग बैटरी से कनेक्ट किया है, सो Q इज़ द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी एंड Q इज़ द चार्ज रिसीव्ड बाय द बैटरी। अब देखो यहाँ से हम लोगों ने Q1 चार्ज लिया, यहाँ पे हम लोगों ने Q2 चार्ज लिया। तो यहाँ से जो चार्ज गया लेट इट बी Q3, तो यहाँ पे आया Q1, यहाँ पे गया Q3, बाकी बच गया Q1 माइनस Q3। तो यहाँ पे आया Q3, यहाँ पे आया Q2, ये दोनों यहाँ पे ऐड हो गया, कितना हो गया Q2 प्लस Q3। तो ये हो गया Q2 प्लस Q3, ये हो गया Q1 माइनस Q3, ये दोनों से Q3 फिर कट जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा Q1 प्लस Q2। सप्लाई कितना किया था Q1 प्लस Q2, तो मेरा सर्किट बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक लूप है, ये एक लूप है, ये एक लूप है, मतलब एक लूप जहाँ से शुरू कर रहे हो वहाँ पे अगर ख़त्म कर रहे हो तो एक लूप का नेट जो वोल्टेज है वो 0 होगा। अच्छा हियर वी कंसीडर, हम लोग यहाँ पे इसको प्लस इसको माइनस माना है, तो एज ये प्लस है तो इसके साथ साथ ये प्लस ये माइनस होगा, इधर से आया ये प्लस ये माइनस होगा, चार्ज इधर से आया है ये प्लस ये माइनस होगा, चार्ज इधर गया है ये प्लस ये माइनस होगा, चार्ज इधर गया है ये प्लस ये माइनस होगा। मतलब जिधर चार्ज फंस जाएगा वो प्लस और जिससे निकलेगा वो माइनस। तो इधर से चार्ज आया ये प्लस ये माइनस। अब देखो हमें एक एक लूप लेना है, जैसे हम लोगों ने लूप लिया ACDA, तो इस ACDA लूप का ACDA लूप का देखो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, Q इज CV, V इज Q बाई C। तो Q1 यहाँ पे पॉजिटिव पे है तो हम लोगों ने फर्स्ट वाला ले रहा है, सो प्लस हम लोग हमेशा पहला वाला लेंगे, तो प्लस Q1 बाई C1। अब देखो फिर आया हम लोग यहाँ से यहाँ पे गया, A से C गया, C से D जब जाएगा तो मुझे पहले प्लस पोलैरिटी मिला, तो प्लस
Q3/C5। फिर यहाँ से आया, जब हम इधर जा रहा है, देखो मुझे पहले माइनस पोलैरिटी मिला, सो माइनस पोलैरिटी मिला मतलब माइनस Q2/C3। फिर ए पे आ गया, मतलब जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आ गया। सो दैट मीन्स ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज मिला के 0। लेट इट बी द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला लूप ले तो देखो, तुम ऐसे भी ले सकते हो, तुम ऐसे भी ले सकते हो, तुम उल्टा भी ले सकते हो, इट योर चॉइस। तुम ए से सी, सी से डी, डी से ए की जगह तुम ए से डी, डी से सी, सी से ए ले सकते हो। लेकिन जिधर से जाओ, जो लूप पहले मिलेगा, जो पोलैरिटी पहले मिलेगा, उस हिसाब से लिखना है। अगर प्लस मिला तो प्लस लिखना है, माइनस मिला तो माइनस लिखना है। जैसे हम लोगों ने अब जैसे मानो सी से बी, बी से डी, डी से सी जाएंगे, तो सी से डी जाएगा, सबसे पहले मुझे प्लस मिला, कितना Q1 माइनस Q3/C2। फिर हम लोग बी से जब डी जा रहा है, हमें क्या मिल रहा है, माइनस पोलैरिटी, सो माइनस Q2 प्लस Q3/C4। फिर हम लोग देखो इधर जा रहा है तो माइनस Q3/C5। लेट इट बी द इक्वेशन नंबर 2। लेट इट बी द इक्वेशन नंबर 2। नाउ बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज है वोल्टेज ऑफ C इज इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ D, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। अगर हम लोग माने कि C का एंड D का सेम वोल्टेज है, सो C ये दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। सो अगर वोल्टेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसका मतलब नो चार्ज फ्लो। सो व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज? बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज मीन्स the voltage of C is equals to voltage of D, that means potential difference is 0. So as the potential difference is 0, no charge flow through C5, that means Q3 is 0. So now if we put that Q3 is 0 in equation 1, हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा Q1/C1 प्लस Q3 0 है तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, माइनस Q2/C3 equals to 0, which means Q1/C1 equals to Q2/C3, that means Q1/Q2, ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, is equals to C1/C3. Let it be equation number 3. Similarly, if we put Q3 equals to 0 in equation 2, मुझे क्या मिलेगा? देखो Q3 0 है तो Q1 हम लोगों ने लिया था C से B, ये होगा C2। सो Q1/C2 माइनस Q2/C4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल लिखना भूल गया था, 0। सो विच मीन्स Q1/C2 Q2/C4, सो Q1/Q2 C2/C4 इक्वेशन नंबर 4। सो अब देखो from equation 3 and 4, from equation 3 and 4, what we can write कि Q1/Q2 that is C1/C3 equals to C2/C4। अब देखो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता है या एक्सचेंज कर सकता है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, C1/C2 that is C3/C4। तो इससे मुझे क्या मिला? इससे मुझे ये मिला कि अगर ये व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, अगर ये व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो बैलेंस कंडीशन, अगर व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो दिस कैपेसिटर बाय दिस कैपेसिटर इक्वल्स टू दिस कैपेसिटर बाय दिस कैपेसिटर, मतलब C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4। अब हम इसको जब प्रूफ कर दिया, अब हम इसको रिवर्स भी बोल सकता है कि जब भी कोई सर्किट में मुझे व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट में अगर मुझे C1/C2 इक्वल्स टू C3/C4 दिखे, तो हम बोल सकता है दैट सर्किट इज बैलेंस, एंड एज द सर्किट इज बैलेंस नो चार्ज फ्लो थ्रू C5, इसके अंदर से कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा। और जबकि इसके अंदर से कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा, सो ये हो गया बेकार कैपेसिटर, मतलब वी कैन रिमूव दैट कैपेसिटर फ्रॉम द सर्किट। अब देखो कितना आसान हो गया, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों पैरेलल, तुम्हारा काम हो गया। एक न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज ये है क्वेश्चन, इट्स अ वेरी बेसिक वेरी पॉपुलर क्वेश्चन
let that point is A, that point is B, 10 microfarad, 20 microfarad, 5 microfarad, 10 microfarad and this one is 10 microfarad. हम लोगों ने इसमें और कुछ नाम दे दिया, let it be C, let it be D. मुझे क्या निकालना है, हमें तीन चीज़ निकालना है. एक मैं निकाल दूंगा C of AB, दूसरा C of CD जो तुम्हें निकालना है, एंड तीसरा C of AC जो तुम्हें निकालना है. तो हम तुम लोगों को पहला वाला निकाल के देंगे, दूसरा और तीसरा तुम लोग कोशिश करोगे. दैट इज़ होमवर्क फॉर यू. अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो या डाउट क्लियरिंग क्लास में बता दूंगा. तो देखो, जब भी मुझे ऐसा क्वेश्चन आएगा बिटवीन ए एंड बी, दैट मीन्स मैं अगर यहाँ पे एक बैटरी लगाऊँ मन ही मन, तो यहाँ से क्या होगा, दो पार्ट में करंट जाएगा और यहाँ पे दो पार्ट में रिसीव होगा. दैट मीन्स फ्रॉम ए पॉइंट यू हैव टू टर्मिनल्स एंड एट बी पॉइंट यू हैव टू टर्मिनल्स. मतलब दे आर लुक लाइक दिस. यहाँ से एक ऐसे, यहाँ से एक ऐसे. तो इसको हम लोग बनाने का कोशिश कर रहा है. ये है ए पॉइंट, इससे दो टर्मिनल्स गया है. यहाँ पे है बी पॉइंट, इससे दो टर्मिनल्स किया है. तो ए से ऊपर होके डी गया है, लेट दैट पॉइंट इज डी. और यहाँ से नीचे होके गया है सी, सो लेट दैट पॉइंट इज सी. सो बिटवीन ए एंड डी you have one capacitor. Between D and B you have one more capacitor. So A and D one capacitor 10 microfarad, D and B you have one capacitor 20 microfarad. Between A and C you have one capacitor 5 microfarad. Between C and B you have one capacitor 10 microfarad. Between C and D you have one capacitor 10 microfarad. अब चलो चेक करके देखते हैं. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर से तो लग रहा है ये व्हिटस्टोन ब्रिज है. और देखो तुम्हें बिटवीन ए एंड बी बोला है, सो इट्स वन डायगोनल. एंड बिटवीन सी एंड डी यू हैव टू C and D a capacitor is connected, so clearly it's a Wheatstone bridge. Now we have to check that is that Wheatstone bridge is balanced. So let's check. 10 by 20, that is 5 by 10, that is 1 by 2. So we can say yes, that Wheatstone bridge is balanced Wheatstone bridge. And as this Wheatstone bridge is balanced, we can neglect this one. So इसका equivalent क्या हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये दोनों हो गया सीरीज़ में. तो सीरीज़ में 10 into 20 by 10 plus 20, so ये हो गया 200 by 30, that is 20 by 3. 20 by 3. सिमिलरली नीचे वाला कितना हो जाएगा, 5 into 10 by 5 plus 10, that is 50 by 15, that is 10 by 3. So नीचे वाला हो गया 10 by 3. Now these two are in parallel. तो C of AB is 20 by 3 plus 10 by 3, that is 30 by 3, that is 10 microfarad. तो मैंने पहला वाला कर दिया है, सेकेंड वाला और थर्ड वाला तुम्हें करना है और मुझे बोलना है व्हाट इज़ द आंसर. सो ये मेरा सेकेंड लेक्चर है. इसके बाद हम लोग प्लेट्स का करेंगे कि हाउ वी फाइंड आउट द कैपेसिटेंस, देन एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो मेनी थिंग्स रिमेन एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आज का क्लास मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ. बाय बाय.